Yeah, I hope this is visible to you now. Is it? I hope this screen is visible to you now. You can unmute and you tell me. Yes, sir. So we are in the fourth unit, that is mixed design and admixtures and additives which are considered in a concrete, right? So learning outcomes of today's sessions are various factors which affects the mixed design. Okay, what is mixed design that I told you earlier? Today also I'll give you the definition of a mixed design. And mixed design is nothing but a standard process. Okay, standard process, or you can say the standard recipe with standard ingredients with standard weight, right? So if you are going for the standard of everything, so there is something which affects. So while considering the ingredients, the parameters are there. While mixing the ingredients, again you have to follow some process and procedure. So today I will tell you about the various factors which affects the mixed design. It consists of an introduction, then the factor affecting the mixed design. There are 8 factors which affects the mixed design. Okay. Introduction. Now we know that the concrete is made up of a various ingredients like a cement, sand, that is fine aggregate, coarse aggregate, water. Admixture, it is may or may not be added. Okay, it is not necessary that every time you can add the admixtures. It is up to the requirement or it is up to the choice. Rather than choice, it is the requirement. ठीक है, अगर सच में आपको एडमिक्सचर की जरूरत है तभी आप ऐड करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल increase the cost of that particular project. But in some of the cases, it is really important that without admixture you cannot do anything. I mean, suppose you want to set your concrete early, like I explained you in the last class, final setting time of a cement, that is of a 600 minute. Okay, but if you want that your concrete or cement should get set before the 10 hours, so in that case you can add the admixture so that the setting time can be reduced. Okay, so we know that concrete is a homogeneous mixture which is made up of a various ingredients like a cement, sand, coarse aggregate, water. Okay, and concrete, it is having the various properties like workability. Again, workability is to be checked. Okay, workability, it has to be checked. Okay, so workability check can be done by slump cone test or the compaction factor test. Okay, workability check can be done by slump cone test and compaction factor test. Okay. Okay. So what is workability? That is nothing but the ease of the placement of the concrete without bleeding and segregation. Now, mixed design. Mixed design is nothing but the process. Okay, mixed design, it can be defined as the process of selecting the suitable ingredients of a concrete. Mixed design, it is the process of selecting the suitable ingredients of a concrete. We know that the concrete consists of a cement, sand, coarse aggregate, and water. So apart from that, you can use the fly ash and admixtures. Okay, fly ash and admixture, that is nothing but the additives and admixtures. Like, so in addition to that, I'm sure you cannot use some other ingredients. Like, okay, so these are the selecting the suitable ingredients. Suitable ingredients are रेती, गिट्टी, पानी और सीमेंट. एडमिक्सचर ये आपका चॉइस है, ठीक है, ये तो हो गया आपका. सो मिक्स डिजाइन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सुटेबल इंग्रेडिएंट्स. तो हमने सुटेबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए कंक्रीट, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या है हमने सिलेक्ट कर ली. ओके, आफ्टर दैट determining the relative amount with the object of producing the concrete of a required strength, workability, durability with economy. Okay, वो देखिए हमने मिक्स डिजाइन करने के लिए कंक्रीट का जो मिक्स डिजाइन है, मिक्स डिजाइन करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए. ठीक है, सिलेक्ट करना ये पहली बात है. दूसरी बात है कितना क्वांटिटी में सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव अमाउंट विद द ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिलेटिव अमाउंट विद द ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पहला तो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वर्केबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक होना चाहिए. अगर इस दौरान अगर हमारा एक भी फैक्टर अगर अफेक्ट होता है तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द मिक्स डिजाइन.
Okay, so mixed design can be defined as the process of selecting the suitable ingredients of a concrete and determining the relative amount with the object of producing the concrete of a required strength, quality, workability, economy. ठीक है, सो ये हमारे मिक्स डिजाइन का डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बिकॉज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड आल्सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द वाइवा, व्हाट इज मिक्स डिजाइन। okay, because a civil engineer has to know the mixed design process and the various ingredients of the concrete which are there in the mixed design and the various parameters which are to be considered while mixed design. So again, I'm telling you the definition: mixed design is nothing but the process of selecting the suitable ingredients of a concrete and determining their relative amount, यानी कि हमें कितने क्वांटिटी में लेना है with the object, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी कॉन्क्रीट जिसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी, वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट इज इकोनॉमिकल। अगर इकोनॉमी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट ऑफ मेकिंग द मिक्स डिजाइन। अगर वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिक्स डिजाइन। अगर वो ड्यूरेबल नहीं है, अगर ड्यूरेबिलिटी इज नथिंग बट द सपोज बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है, बारिश में, धूप में, ठंडी में, अगर ये कंक्रीट सस्टेन नहीं करता है देन व्हाट इज द मिक्स डिजाइन। और हाँ, अगर वर्केबिलिटी अचीव नहीं हो रही है देन व्हाट इज द यूज ऑफ मिक्स डिजाइन। सो वी हैव टू डू डिजाइन द कंक्रीट इन सच ए मैनर दैट हमारा जो ऑब्जेक्ट हो, चार ऑब्जेक्ट है वो हमारे अचीव होने चाहिए: स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी and economy. Okay, so this is nothing but the mixed design and definition. Now the next one is the 8 factors which affects the mixed design. Okay, there are 8 factors which affect the mixed design, and that is according to the IS 456-2000. Okay, now many times I told you that IS 456-2000 is nothing but the backbone of reinforced cement concrete. Okay, ये आपको याद रखना ही है, इसके बहुत सारे क्लॉज है। टुडे आई विल शेयर विथ यू IS 456, IS 10262 and IS 383. Okay, and this 8 factors is governed, or you can say the according to the IS 456-2000 and IS 1343 1980. Okay, so which design the concrete mix and should be based on the following factors. Okay, in addition to that you have to refer the IS 10262 2009, which is the mixed design code. Okay, according to the Indian standard. Now, the very first factor which affects the mixed design is the grade designation. ठीक है, ये पहला की और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है मिक्स डिजाइन का, ग्रेड डिजिग्नेशन। ठीक है, ग्रेड डिजिग्नेशन क्या है कि हम कुछ भी ग्रेड डिसाइड करते हैं। व्हेनेवर वी गो फॉर मिक्स डिजाइन वी आर हैविंग द 2 स्ट्रेंथ। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहता है, दूसरा है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? Let us consider that you are doing the concrete mix design for M30 grade of a concrete. Okay, M30. So M represents the mix and 30 represent the characteristic compressive strength which should be obtained after 28 days of a testing. ठीक है, तो हमारा मेन स्ट्रेंथ क्या रहेगा? जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमारा जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो भी अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेड डेजिग्नेशन वही है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कंक्रीट मिक्स जो बनाना है या फिर मिक्स डिजाइन बनाना है वो किसके लिए बनाना है। देखिए, आईएस कोड में क्या दिया है कि अप टू द M20 ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जो कल भी मैंने शायद आपको दिखाया था कि अप टू द M20 ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज डायरेक्टली गिवन इन द IS 456-2000। वो जो वैल्यूज दी हुई है 1:1:2 दैट इज फॉर M20, तो आप डायरेक्टली यूज करो टू मेक द कंक्रीट। बट इफ यू गो बियॉन्ड दैट, आप M20 के अगर अबाउट जाते हैं तो आपको मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ग्रेड कौन सा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा लेने वाले हैं, आई मीन ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या बनाने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर M25, M30, M35, M40, M45 और M80। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्रेड डिजिग्नेशन। ये तो ऐसा हो गया कि आपके घर में मेहमान आ गए हैं, आपके घर में कुछ प्रोग्राम है और आपको पता ही नहीं कि कितने लोगों का खाना बनाना है। ठीक है, खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है करी, क्योंकि ठीक है बाकी तो एडजस्ट हो सकता है बट इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट करी देन, क्योंकि बाकी सब लोग तो दाल रोटी तो नहीं खाएंगे।
Okay, so if there is a function in your home and you're having a guest of 100, वो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि यू आर हैविंग अ गेस्ट ऑफ 100, यानी कि 100 जो लोग हैं उनके लिए आपको सब्जी बनानी है, ठीक है. So grid designation is very very important, that 100 and here M30, so that is very very important. The concrete mix has to be designed for a target mean compressive strength. Target mean compressive strength क्या है कि target mean compressive strength is equal to the characteristic strength plus 1.65 into standard deviation. ठीक है, हमारा डिसाइड हो गया कि वी आर हैविंग ए कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ M30 ग्रेड ऑफ ए कॉन्क्रीट. तो ये M30 तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया, प्लस उसके साथ भी कुछ कांस्टेंट आते हैं, दैट इज एडेड, दैट इज 1.65 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आपका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली 30 से ज्यादा रहेगा. ठीक है, जैसे कि आपके घर में प्रोग्राम है, प्रोग्राम में 100 लोग आने वाले हैं, 100 लोगों के लिए आपको सब्जी बनानी है. तो आप जो कुक रहता है, जो आचार्य रहता है, आपको उसको तो बताते हो कि 100 लोगों के लिए खाना बनाना है, लेकिन वो क्या करता है, जो आचार्य है, जो कुक है, he used to prepare food for 110 और 120 people. तो वो एक्सेस बनाता है. ठीक है, अगर कुछ प्लस माइनस हो गया, माइनस तो नहीं होता, डेफिनेटली प्लस ही होता है, क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर है वहां पे 2 लोगों से ज्यादा 4 लोग ज्यादा आते हैं प्रोग्राम में. ठीक है, तो ये तो होता ही है. तो ग्रेड डिजिग्नेशन वही है कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग फॉर M30, M30 फॉर M40. और हाँ, उसके साथ साथ है टारगेट मीन स्ट्रेंथ. हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी होना चाहिए. ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ डेफिनेटली इफ यू वंस यू हैव फिक्स द मिक्स, तो वो तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि उसके साथ साथ भी आते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्राम में 2 लोगों से ज्यादा, उसके साथ साथ 2 लोग और आते हैं, तो वही है टारगेट मीन स्ट्रेंथ. वेरी फर्स्ट पार्ट which affects the mix design is a grade designation. ठीक है, वो हमारा ग्रेड डेजिग्नेशन होना चाहिए. सेकंड है टाइप एंड ग्रेड ऑफ ए सीमेंट. देखिए, we I explain you various types of cement starting from OPC, PPC, rapid hardening cement, Portland pozzolana cement, then granulated blast furnace slag cement. Okay, so अभी देखिए, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, 100 लोगों के लिए खाना बनाने, खाने बनाने में सब्जी बनाने वाले हैं. ठीक है, पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं. ठीक है ना, वो पनीर की सब्जी बनाना है, तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं सब्जी के लिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. वो हो गया. उसके बाद वो जो टाइप ऑफ पनीर है वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो हियर सेकंड factors which affect the concrete mix or mix design is the type and a grade of a cement. भी देखिए, मार्केट में बहुत सारे सीमेंट अवेलेबल है. आपका जो सीमेंट कौन से यूज करने वाले हैं, ओपीसी यूज करने वाले या पीपीसी यूज करने वाले. जनरली ये दोनों ही सीमेंट यूज करते हैं. हाँ, अगर आपको सेटिंग बहुत जल्दी करना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. उसका स्ट्रेंथ का भी फैक्टर्स रहता है, और वो कॉस्ट में भी थोड़ा प्लस होता ही है, और हाँ, जल्दी सेट होता है. अब अगर आपको जो नॉर्मल सीमेंट है, नॉर्मल सीमेंट लेट अस कंसीडर ओपीसी और पीपीसी, अगर आपको वही सीमेंट यूज करके अगर जल्दी आपको स्ट्रेंथ करना है, जल्दी आपको स्ट्रेंथ या फिर ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करना है, देन यू कैन गो फॉर अ हायर ग्रेड ऑफ ए सीमेंट. आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, 33, 43, 53. ठीक है, so the choice of type of cement depend upon the requirement of performance. आपको परफॉर्मेंस कैसा चाहिए, स्लो परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा मीडियम परफॉर्मेंस चाहिए, या हाई परफॉर्मेंस चाहिए. अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, देन यू कैन गो फॉर अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. जो हाई परफॉर्मेंस है, यानी कि डेफिनेटली जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो जल्दी अचीव करना चाहिए, और मोर यू वांट मोर, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 43 एंड 53. ठीक है, ये दोनों ग्रेड दीज आर सुटेबल फॉर अ हाई परफॉर्मेंस एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट द मिक्स डिजाइन. फर्स्ट फैक्टर इज द ग्रेड डेजिग्नेशन, यानी कि आपको ग्रेड डिसाइड करना है M30. सेकंड, आपको सीमेंट डिसाइड करना है, पीपीसी चाहिए, ओपीसी चाहिए, रैपिड हार्डनिंग चाहिए, या पोर्टलैंड पोज़ोलाना चाहिए, या ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट चाहिए. डेफिनेटली कलर सीमेंट तो आप यूज नहीं करोगे कंक्रीट मिक्स के लिए. ठीक है, क्योंकि कलर सीमेंट का यूज कुछ अलग ही है. ठीक है, थर्ड रहता है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, दिस अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. देखिए भाई, अगर वर्केबिलिटी अच्छी है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में डेफिनेटली इफेक्ट होगा, और वर्केबिलिटी अगर ज्यादा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी इसका इफेक्ट होगा. ठीक है, ये क्या है, थर्ड इज नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट कंसिडर 2 एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द sieve analysis and according to the IS code, we know that if the particle size is less than 4.75 mm, the particles which can pass through 4.75 mm IS sieves, they are called as a fine aggregate. Okay, and the particles which retains on a
sieve of a 4.75 micron. These are called as the coarse aggregate. And as far as the construction activities is concerned, related to building or related to any project, ठीक है, प्रोजेक्ट में बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, लेकिन मैं बिल्डिंग से रिलेट करूंगा। तो बिल्डिंग को अगर आपको बनाना है तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर M20 ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट, सॉरी मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज ऑफ ए 20 mm, ठीक है। बट हाँ, उसमें भी 3 पैरामीटर रहते हैं, वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। ये क्या है? वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। whatever the aggregates which you are going to use for our construction activity, ठीक है, सो इट शुड बी ऑफ वेल ग्रेडेड, यानी कि इसमें इतना भी होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए और इतना भी होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। अभी रही बात मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट की। अभी देखिए, अगर आपका एग्रीगेट का साइज अगर ज्यादा है तो क्या रहेगा कि उस केस में उसका जो सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, तो वो कम रहेगा, ठीक है। अगर जो एग्रीगेट का साइज अगर ज्यादा है, लेट अस कंसीडर दैट ये मेरा एग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली सरफेस एरिया कम रहेगा, ठीक है। यही लिखा है कि ऑन द अदर हैंड द यूज ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ए सीमेंट। तो देखिए इसमें स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्यों लगेगा? क्योंकि ये सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर ये मेरा एग्रीगेट को इसमें पार्ट में डिवाइड करता हो तो एक क्यूबिकल साइज बनेगा, तो क्यूब के 6 फेसेस रहते हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। तो इन दैट केस जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। और लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ पनीर। अगर पनीर के पीसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो ग्रेवी है, ग्रेवी उसके आजू बाजू में रहेगी। अगर उसको आप कट करते हो, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ग्रेवी उसमें फंस जाएगी, ओके। सो हाउएवर द स्मॉलर साइज एग्रीगेट प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया। जो मैंने बताया कि अगर आप उसको कट करते हो, ठीक है, अगर ये मेरा एक ही पार्टिकल, एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है, तो सरफेस एरिया इतना हो गया बस, ये जो जितना दिख रहा है उतना। अगर इसको मैं कट करता हूँ, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये सीमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। So I hope you got this particular point. Maximum size of aggregate, यानी कि maximum size of aggregate है वो definitely affect करता है वर्केबिलिटी अगर affect करते हैं तो definitely compressive strength में उसका effect होगा। The workability and compressive strength of a concrete greatly depend upon the maximum size of aggregate, ठीक है। अगर वो साइज अगर कम है, छोटे छोटे पार्ट में है, तो ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, तो जो बॉन्डिंग रहेगी मोटर की वो ज्यादा रहेगी। सो अगर वो ज्यादा रहेगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो सीमेंट का जो बॉन्डिंग है उतना अच्छा नहीं रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ ग्रेडिंग ऑफ ए कंबाइन एग्रीगेट यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। अभी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्रेडिंग दोनों एग्रीगेट का अगर अच्छा नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट द वर्केबिलिटी, एंड वर्केबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार द कंक्रीट इज कंसर्न, ठीक है। वर्केबिलिटी, it is nothing but the ease of a placement of a concrete without segregation and without bleeding. The grading of a combined aggregate, that is relative proportion of a fine and coarse aggregate. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारा, अगर कोर्स एग्रीगेट सस्ता है तो बहुत सारा डाल दिया और फाइन एग्रीगेट का नामो निशानी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कंक्रीट अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। That's why mixed design is nothing but the adequate quantity of a fine aggregate, coarse aggregate, cement and water. कुछ भी कम और बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ए दिस स्कार्सिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट वाज एंड फाइन एग्रीगेट वाज देयर। अगर आप रेनी सीजन में अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ए फाइन एग्रीगेट, क्योंकि जनरली जो सैंड है या फिर रेती है, हम तो ये रिवर से लेके आते हैं और रिवर में तो पानी रहता है, ठीक है। तो इन दैट केस वी गेट द स्कार्सिटी ऑफ ए फाइन एग्रीगेट, एंड यस बिफोर 2 years देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट आल्सो। कोर्स एग्रीगेट की जो गिट्टी की उसकी जो कमतरता वो महसूस हुई थी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस ये सिनेरियो में। दैट्स व्हाई द पीपल वेर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव मटेरियल फॉर फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ओके। सो जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है, उन दोनों का जो प्रपोर्शन है वो अच्छा होना चाहिए। Fine aggregate and coarse aggregate in a concrete mix is one of the important factor affecting the strength and workability of a concrete.
देखिए अगर डेंस कंक्रीट है, इट इज एसेंशियल दैट कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स विल बी ऑफ ए वेल ग्रेडेड। जैसे मैंने बताया कि अगर वो पुअरली ग्रेडेड रहेगा तो स्ट्रेंथ में इफेक्ट होगा। अगर वो इट इज इफ इट इज अ वेल graded, then I'm sure the strength will be of a good one. So I hope you understood this particular factor also, grading of a combined aggregate. Next one is the water cement ratio. भाई ये तो बहुत बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी प्रोग्राम में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे सब्जी में बहुत सारा पानी डाल दिया, ठीक है। सब्जी में अगर बहुत सारा पानी डाल दिया तो सब्जी का कोई टेस्ट नहीं रहता, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, अगर आपने कंक्रीट में बहुत सारा पानी डाल दिया तो वो जो कंक्रीट है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा ही नहीं। आप कितना भी ट्राई करो, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट। इफ यू गो फॉर मिक्स डिजाइन ऑल्सो, मिक्स डिजाइन भी आपने बना लिया बट स्टिल आपको लगता है कि आपको पानी डाल दिया, एक्स्ट्रा पानी डाल दिया तो स्ट्रेंथ मिलेगा, वो ऐसा नहीं होगा। वाटर सीमेंट रेशियो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। At a given age and under normal temperature, the compressive strength of a concrete depends primarily on the water cement ratio. ठीक है, water cement ratio IS कोड में दिया हुआ है, how to use and what is the maximum water cement ratio, ठीक है, 0.45 to 0.6 याद रखिए, ठीक है। लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो ग्रेटर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। देखिए ये मैंने वर्केबिलिटी के समय भी आपको बताया था कि अगर आप पानी अगर कम डालते हो तो डेफिनेटली वर्केबिलिटी में थोड़ा इफेक्ट होगा लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बट इफ यू एड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, वर्केबल कंक्रीट रहेगा बट एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न वो कम रहेगा। कोई ये भी बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी और नो रिलेशन विथ इट। ये शायद मैंने क्वेश्चन भी पूछा था क्विज नंबर 2 में, ठीक है। सो वाटर सीमेंट रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू एड मोर क्वांटिटी ऑफ द वाटर, it will be definitely workable, but the strength will not get that much which is desired to be, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है that's why the lower water cement ratio greater is the compressive strength and vice versa. Workability, as from this session I'm keep saying workability is nothing but the ease of the placement of a concrete without bleeding, without segregation, ठीक है। वर्केबल होना चाहिए और जब आप कॉम्पैक्ट करते हो तो इट शुड नॉट गेट सिग्रीगेटेड। एंड यस वन मोर थिंग, द सीमेंट स्लरी, ठीक है, सीमेंट स्लरी आएंगे जो सब सीमेंट और कंक्रीट आप मिक्स बनाते हो तो वो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट रहता है उसमें अगर आप थोड़ा सा और पानी अगर डालते हो तो उसका जो सीमेंट स्लरी निकलती है इट शुड नॉट कम आउट फ्रॉम द जॉइंट। ये जो आपका रेनफोर्स, ये जो आपका शटरिंग रहता है, शटरिंग या फॉर्म वर्क, ठीक है, हिंदी में उसको सेंटरिंग भी बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साइट में। तो ये जो गैप, ये जो जॉइंट रहता है, जॉइंट के बीच में से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगर निकल गया तो वो लिब्रिकेशन नहीं मिल पाएगा, उतना अच्छा सा मिक्स नहीं हो पाएगा। इनसफिशिएंट वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट में लायबल फॉर इनकम्प्लीट कंपैक्शन ऑफ ए कंक्रीट, ठीक है, which ultimately affect the strength, durability and surface finish of the concrete। देखिए जो मैंने एग्जांपल बताया आपको सेंटरिंग का, अगर ये सेंटरिंग में है, सेंटरिंग में डेफिनेटली जॉइंट रहता है, एक तो कंबाइन तो पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली 2 प्लाईवुड्स विल बी कंबाइंड टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटरिंग, ठीक है। सेंटरिंग में अगर यहाँ पे कॉर्नर में गैप है तो कंक्रीट में तो पानी रहता है, पानी जैसे सीमेंट स्लरी के साथ साथ वो निकल जाता है। अगर सीमेंट स्लरी के साथ साथ सीमेंट स्लरी अगर वो जो गैप से निकल गई तो आपका जो सरफेस पे जो टेक्सचर रहेगा ना वो स्मूथ नहीं रहेगा, इट इज अनफिनिश, आपको लगेगा कि वो फिनिश नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो, दैट इज वर्केबिलिटी। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। अब जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होना चाहिए। वो सर्दी में, ठंडी में, बारिश में या फिर कोई भी अटैक रहेगा, ठीक है। सो इट शुड एबल टू रेजिस्ट द वेरियस अटैक। The durability of concrete is the ability to resist the deterioration due to the weathering action, chemical attack and abrasion। जो आप जो स्ट्रक्चर बनाते हो, जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाते हो, इट मस्ट बी अ स्टेबल वन, ठीक है। इट कैन बी एबल टू विथस्टैंड द वेरियस अफेक्ट्स, वेरियस लोड्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंज होता है, बारिश आती है, फिर टेम्परेचर चेंज होता है सर्दी में और टेम्परेचर बढ़ जाता है समर में, ठीक है। तो ये जो वेदरिंग एक्शन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि वो बहुत साल तक रहे। द रिक्वायरमेंट ऑफ ए ड्यूरेबिलिटी आर अचीव बाय रिस्ट्रिक्टिंग द मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। सो ड्यूरेबिलिटी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, बाय
मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, अगर आप ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो करोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। From the consideration by permeability, the water cement ratio is usually restricted to 0.45 to 0.65. ये permeability के अगर आप डिपेंड आप चॉइस करते हो या फिर चूज करते हो permeability का जो पार्ट है, अगर आप उसको अगर देखते हो, उसको मद्देनजर रख के अगर आप मिक्स डिजाइन करते हो, तो इन दैट केस योर water cement ratio is restricted to 0 in between 0.45 to 0.55. Okay, but IS code what says 0.45 to 0.6. लास्ट वन इज अ क्वालिटी कंट्रोल। भाई ये सब हो गया, उसके बाद तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल तो बनता ही है, ठीक है। जैसे कि सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के बाद हम टेस्ट करके देखते हैं, या फिर अगर कुछ ये कड़ी वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ स्वीट वगैरह बनाते हैं, हम तो बोलते हैं ना भाई लेट अस कंसीडर के लिए यू आर प्रिपेयर पकौड़े बना लिए, पकौड़े बनाने के बाद हम किसी को देते हैं टेस्ट करने के लिए, भाई टेस्ट करके देखो इसमें नमक कम है या फिर मिर्ची ज्यादा होगी है। सो वही है, कॉन्क्रीट हमारा बन गया, उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक। और हाँ, द क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज वेरी बैच टू बैच। अभी देखिए एक बैच क्या होता है कि लेट अस कंसीडर द बैच ऑफ ए कंक्रीट। बैच में क्या होगा कि एक बैच के लिए पर्टिकुलर कंक्रीटिंग करने के लिए आपने एक बैच बना लिया, ठीक है। अभी ये बैच टू बैच वेरी कैसे होता है कि अभी देखिए लेट अस कंसीडर द सेम कुक हु इज प्रिपेयरिंग अ करी ऑफ 100 पीपल। ए ऑल द इंग्रेडिएंट्स वो सेम है, सभी सेम है, ठीक है, जो प्रोसेस है सभी भी सेम है, लेकिन जो सब्जी बनाता है पहले वाली सब्जी और दूसरे वाली सब्जी उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप चेक करो, ठीक है, आप चेक करो, यू विल फाइंड डिफरेंस। सो वैसे ही जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है रिलेटेड टू बैच ऑफ ए कंक्रीट इज वेरी, ओके। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में वेरी फ्रॉम बैच टू बैच ओवर अ पीरियड ऑफ ए टाइम। जरूरी नहीं है कि पहले जो बैच जो हमने कंक्रीट बनाया और जो दूसरे बैच का वो कंक्रीट बनाया स्ट्रेंथ सेम रहेगा, थोड़ा उसमें वेरिएशन रहेगा। The source of variation in the strength of concrete may be considered due to the variation in the quality of a material. हो सकता है ऐसा कि मटेरियल है उसकी वजह से भी चेंज हो सकता है, मिक्स प्रपोर्शन की वजह से भी चेंज हो सकता है, मिक्सिंग इक्विपमेंट के वजह से भी चेंज हो सकता है। और हाँ, नंबर ऑफ जो कंक्रीटिंग करने के जो कंक्रीट मिक्स रहता है वो रोटेशन ले लेता है। अगर वो पहले मिक्स के लिए अगर 10 रोटेशन ले लिया और दूसरे मिक्स के लिए अगर 12 रोटेशन ले लिया तो भी चेंज होता है। सुपरविजन एंड वर्कमैनशिप, ठीक है। दिस क्वालिटी कंट्रोल इज टोटली रिलेटेड टू द स्टार्टिंग फ्रॉम मिक्स प्रपोर्शन अप टू द प्लेसमेंट एंड फिनिशिंग एंड ऑल। उसके बाद जो क्वालिटी चेकअप होता है वो बैच ऑफ कंक्रीट, यानी कि इस बैच के लिए थोड़ा क्वालिटी अलग रहेगा, इस बैच के लिए अलग रहेगा, इस बैच के लिए अलग रहेगा, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द कंक्रीट थ्रू मिक्स डिजाइन, इट विल हैव अ लिटिल बिट वेरिएशन, okay। So the factors controlling the variation is quality control. The degree of control is ultimately evaluated by the variation in the test result. अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि यू आर हैविंग अ बैच ऑफ कंक्रीट, फ्रॉम बैच ऑफ कंक्रीट यू प्रिपेयर्ड 100 क्यूब and out of 100 cube you find that 95 cube is having a test result more than 20, whereas the only 5 cubes, ठीक है, only 5 cubes is having the test result less than 20। तो आपका बैच का तो कंक्रीट तो एक ही था, लेकिन 95 जो क्यूब है उसका जो रिजल्ट 95% क्यूब का रिजल्ट कुछ अलग मिला, 20 से ज्यादा मिला, और 5 क्यूब ऐसे बने कि जिसका रिजल्ट कुछ अलग मिला, ठीक है। सो दैट इज यू कैन कोरिलेट विद द क्वालिटी कंट्रोल। सो द फैक्टर्स विच कंट्रोलिंग द वेरिएशन इज क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। The degree of quality, the degree of control is ultimately evaluated by the variation in the test result। अभी देखिए एक ही बैच था लेकिन एक ही बैच में 95 क्यूब का रिजल्ट कुछ अलग मिला, 5 क्यूब का रिजल्ट कुछ अलग मिला। ये आपको कब पता चला? आफ्टर टेस्टिंग, ठीक है। So I hope you understood all the 8 factors which affects the mix design, starting from quality started with a grade designation, then type of cement, okay, so up to the quality control. So that's it for today's session. So these are the 8 factors which affects the mix design. So if you have any difficulties, any doubt, if you want to ask any questions related to this particular topic, then your questions are welcome. We are having a discussion now.